वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे एमसीक्यूज ऑन VSEPR थ्योरी एंड शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर NH3, H2O, SF4 या BF3? SF4 तो नहीं, एंड द करेक्ट आंसर इज NH3 which has a pyramidal structure. Next question, the observed shape of water molecule is pyramidal, V shape, seesaw या tetrahedral? Water molecule has two lone pair and V shape is the correct answer. Next question, the bond angles in trigonal bipyramidal molecules with 5 bond pairs will be dash 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 degrees: 90 and 120, 72 and 90, 180 and 120, 72 and 120. This is what the shape of this molecule, trigonal bipyramidal. Okay, these 3 atoms are in one plane and और ये जो है ये perpendicular है, यहाँ पे 90 का एंगल है और इसमें 120 का एंगल है. Okay, and therefore the correct answer is 90 and 120. Next question, the geometry of H2O molecule according to VSEPR theory is tetrahedral, angular, pyramidal, or planar triangle. Again a very simple question, just now we have seen it has a V shape, that is angular geometry. The observed shape of SF4 molecule is pyramidal, V shape, seesaw या tetrahedral. So this is what the shape of SF4 molecule you can see. So one lone pair, इसलिए उसमें repulsion ज़्यादा है और ये seesaw बन गया, and therefore the correct answer is C. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ExEF2 1, 2, 3 या 4? ExEF2 का स्ट्रक्चर जो है लीनियर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर्स एंड देयरफॉर C इज द करेक्ट आंसर. इन sp3d hybridization the new hybrid orbitals have the following geometry: tetrahedral, square planar, trigonal या trigonal bipyramidal. अगर ये आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज trigonal bipyramidal. The hybridization of S in SF4 is sp2, sp3, sp3d या none of these. तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी आप इसको कर सकते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज sp3d. C is the correct answer. Next question, the central atom in a molecule has 3 electron pairs oriented at 120 degree each other. The shape of molecule will be. So very simple, अगर 3 electron pairs अगर है तो ये बन गया planar. Okay, and therefore the correct answer is planar triangular. Next question, the correct order of repulsion in the molecule among the lone pair bond pair is. So these are what the options given. Okay, जिसमें bond pair interaction है, lone pair है और bond pair interaction है. Okay, तो एक चीज हमें पता होना चाहिए, the repulsion between lone pair is greater than the bond pair. Lone pair जो है वो ज्यादा repulsion करता है than bond pair. Therefore D is the correct answer. Next question, the bond angle of 104.45 degrees present in. तो ये भी वेरी सिंपल और सिंगल क्लिक इसका आंसर होना चाहिए. ओके, वाटर मॉलिक्यूल H2O इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विच हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, पिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएंगे तो पिरामिडल इज द करेक्ट आंसर. अगर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा जो कि पिरामिडल है. Next question, the central atom in a molecule contains 2 electron pairs oriented at 180 degree each other. The shape of the molecule will be planar, triangular, tetrahedral, linear or trigonal bipyramidal. Now this is very simple question. अगर 180 डिग्री अगर एंगल है तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर बन जाएगा लीनियर एंड देयरफॉर C इज द करेक्ट आंसर. द शेप ऑफ ExEF2 मॉलिक्यूल इज लीनियर, पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर या एंगुलर? इसमें एंगुलर या लीनियर में थोड़ा कंफ्यूजन आपका हो सकता है. इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, हैव 3 लोन पेयर्स. लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड पेयर जो है एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर रहेंगे एंड देयरफॉर द स्ट्रक्चर वुड बी लीनियर एंड देयरफॉर A इज द करेक्ट आंसर. द हाइब्रिडाइजेशन कंसर्न विद ClF3 मॉलिक्यूल इज sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन इज माइग्रेटेड टू द d ऑर्बिटल और ये बन गया sp3d एंड देयरफॉर B is the correct answer. Which of the following molecule contain 1 lone pair of electron on central atom? H2O, ExEF4, NH3 या ClF3? So इन मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा लोन पेयर है. ओके, and NH3 which has only 1 lone pair. Okay, and therefore C, NH3 is the correct answer. Next question, the bond angles in pentagonal bipyramidal molecule with 7 bond pairs are 90, 120, 72, 90, 180, 120, 72, 120. इससे पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा जहां पे 5 बॉन्ड पेयर्स थे. ओके, नाउ हियर आर 7 बॉन्ड पेयर्स. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 5 फ्लोरीन मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये एक ही प्लेन में है. ओके,
और ये जो एंगल दिख रहे हैं आपको, ये सभी जो है वो सेम एंगल है। सो ये टोटल जो एरिया है 360 डिग्री का, उसमें 5 बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, 1 2 3 4 5। ओके, सो 360 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, बन गए 72। वर्टिकल लाइन का जो एंगल है ये है 90 डिग्री, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 72 एंड 90। Which of the following is having planar structure? XCF4, NH3, XZF2 या H2O? स्ट्रक्चर जो है आपको अगर पता होगे तो इलिमिनेट करके आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज XCF4 जो कि प्लेनर है। द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। सो दिस इज व्हाट द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल, ओके, ऑक्टाहेड्रल, एंड देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। The bond angle in FClF in ClF3 molecule is dash 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 degrees, 90, 87.5, 104.5, 109.5। इन दिस स्ट्रक्चर लॉजिकली अगर सोचेंगे तो 90 आंसर जो है वो हो सकता है, ओके, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा कि देयर इज मोर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ओके देन बॉन्ड पेयर, और इसलिए थोड़े से सप्रेस हो जाएंगे, ओके, एंड देयरफॉर द एंगल विल बी लेस देन 90 जो कि 87.5 है, ओके, एंड देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर इज XZF4, IF5, XCF2 या ClF3? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज XCF2 which has 3 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर। इससे पहले भी हमने इसे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्री ऑफ IF7 मॉलिक्यूल इज स्क्वायर पिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एंगुलर या ऑक्टाहेड्रल? थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 मॉलिक्यूल इन विच दिस 5 फ्लोरीन एटम्स आर इन वन प्लेन एंड these are to the 90 degrees to this plane, and therefore the correct answer is pentagonal bipyramidal. Next question, which of the following molecule is bent T-shaped? H2O, XCF4, SnCl2 या ClF3? सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। अगेन मैं कहूंगा कि इसको लोन पेयर का इंटरेक्शन ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा बेंट हो गया, 90 से कम का इसका एंगल है और ये बन गया टी शेप। द बॉन्ड एंगल इन 2 कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन NH3, H2O, CH4 या ClF3? ये थोड़ा सा ट्रिकी या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं कहूंगा, ओके, जिसमें हर एक का बॉन्ड एंगल आपको पता है तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी आप लिख सकते हैं, एंड दीज आर द बॉन्ड एंगल्स, एंड C इज द करेक्ट आंसर। Thank you for watching this video.